Today you are late, 5 minutes late due to your previous class. Sorry, sir, for that, but sir, it's my fault, sir. Due to sir, I am asking some questions, sir. Okay, no issue. Question तो आ जाता है ना. It may happen, but okay. It may happen, no problem, no issue. Let's start. So जहाँ में हम लोग छोड़ गए थे उसी जगह में हम Sir, लोग still, शुरू. sir, on screen it is still showing, sir, that Vishwajit, sir, is presenting screen. ओ प्रेजेंट नहीं हुआ. No, sir, no, sir. ओ तो मैं तो प्रेजेंट कर चुके थे. ओके, ये काट के देखो तो. Yes, sir, yes, sir. हो Now गया it ना. is clear. ओके, तो पॉज शेयर हो गए थे somehow. So today we are late. Okay, so let us start. Don't delay now. तो टाइम स्केलिंग हम लोग बोल रहे थे लास्ट क्लास में, तो उसी जगह में हम लोग शुरू करेंगे. तो ऑलरेडी वी नो व्हाट इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, हाउ टू गेट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, हाउ टू रिप्रेजेंट ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, all these things. Okay, and what is the shifting property of the discrete time signal. Now come to the point, टाइम स्केलिंग वो मतलब क्या है. देखो एक्स ऑफ एन ये नॉर्मल तुम्हारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है एक्स ऑफ एन. नाउ जब एक्स ऑफ 2n, एक्स ऑफ 3n, ओके, so when that means your discrete time, that is n, is multiplied with some scalar factor, okay, then it is called time scaling. टाइम स्केल हो जाता है. तो ये दो टाइप का होता है. ये अल्फा वैल्यू, अल्फा बेसिकली इट्स स्केलिंग फैक्टर. समटाइम्स इट मे बी ग्रेटर देन 1, that is 2 3 4 5. Sometimes it may be less than 1, मान लो half, 1/3, something like that. So that means sometimes n is some multiple of multiple values. Sometimes it may be n divided by some factors. Okay, so that may happen. So when the value of alpha, that multiplication factor, is greater than 1, then we may say that decimation in time. So in that case, we may say that time को decimation हो रहा है. If alpha value less than 1, then we can say it's an interpolation method. So take one example. Already we have taken last day, but still today I will take one more example. X of n, that is given as 1 2 3 4 5 6 and 7. That is the original your discrete time signal. Now how to get decimate in time? So now you multiply your time factor n with 2 factor, that is twice n. Okay, now we get the new sequence, that is x1n. So when xn, that is n, is multiplied with 2 factor, that is x of 2n, then we may say that we get new type of discrete time signal, and that is termed as x1 of twice n. तो now क्या होता है देखो, when that is the origin, you people know that I already told you the arrow indicating the origin. So इधर क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा, and right of that is positive. So that means x0 is this, x1 is 5, x2 is 6, x3 is 7, x of minus 1 is equal to 3, x of minus 2 is equal to 2, x of minus 3 is equal to 1. So now come to the point, x1n is equal to x of 2n. That means n is multiplied with the alpha factor. Now here alpha is 2. Now take the value of n is equal to 0. So when the n is 0, so 2 into 0, how much? X of 0 हो जाएगा. Now x of 0 means how much? 4. So that is clear from the sequence, 4. Now when the value of n is 1, so x of 2n क्या हो जाएगा?
x ऑफ 2 हो जाएगा। सो x ऑफ 2 क्या है, ये 0 था, ये x ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, 6 है। सो x ऑफ 2 का वैल्यू 6 हो गया। Now you are multiplying n with the 2n. So now n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 2 है। So when the value of n is 2, so 2 into 2 4 हो जाएगा। So x of 4. Now you people, anyone, please tell me what is the value of x4 here. Please, anybody tell me what is the value of x4 here. Sir, nothing. Nothing. That is Sir, 0. nothing. Nothing. That means 0. Very good. So as it is 0, x4 में 0 आ गया, so x5 का कोई मतलब नहीं होगा, वो भी 0 होगा, x6 भी 0 ही होगा। So don't go there. Now come to the left side. Okay. So what is the value of that, x of minus 1? Now take the value of n is minus 1. Okay. Now already we have taken the positive side, 0, n का value 0, n का value 1, n का value 2 we have taken. Now take the value of n as negative. So n is equal to minus 1. तो x of twice n क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो x ऑफ -2, तो x ऑफ -2 का वैल्यू क्या है बाबू, 2 है, ये 2 है। ओके, सो x ऑफ -2 इज 2 हो गया। नाउ व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज -2, तब क्या होगा, x ऑफ -4 होगा। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x ऑफ -4 हियर। एनीबॉडी प्लीज टेल मी। 0। Nothing, sir. Nothing. That means 0. Sir. Okay. So no need to move further because already we got x of -4 is equal to 0. So x of -5 would be 0. Sir. So now, हाँ बोलो। Sir. हम्म। Sir, x of -2 is 3 ना? ये बाबू ये कोमा है, वो काल भी ये बोल रही थी। हाँ हाँ, ये सॉरी, आई एम सॉरी, लिखने में 3 हो गया, लेकिन ये कोमा है बाबू। हैं 3 2 1 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 नॉर्मली मैंने ले लिया। तो देखो न्यू जो सीक्वेंस है, x1 0, x1 0 4, x1 1 6, ठीक है, और x -1 2, x -2 4, तो ये कुल मिला को न्यू जो सीक्वेंस है वो तुम लिख लो। क्या होगा, हो गया न्यू जो सीक्वेंस देखो। एक हाँ बोलो सर, यहाँ पे x of 0 सर x of 0 सर x1 of 0 है ना सर, इसके बाद सर इज इक्वल टू x1 of 2 x0। सर इसका मतलब सर क्या है, मतलब कि सर पोजीशन 0 कंसीडर किया जा रहा है ना सर। हाँ, x1 0 देखो, x1 0 सेम टू सेम है, 0 का ओरिजिन का कोई चेंज नहीं होगा डेसिमेशन में, ठीक है। डेसिमेशन के जो नो सर, आई एम नॉट आस्किंग दैट सर। ये सर यहाँ पे x of 1 0 इज इक्वल टू सर जो मिडिल पॉइंट है ना सर x of 2 x0 सर दिस इज द पोजीशन। ये देखो ना, ये जो तुम्हारा ये जो सिग्नल है ना ओरिजिनल, उसका जो ओरिजिन है, और जब तुम अल्फा बार डेसिमेट जब कर रहे हो, डेसिमेट के बाद वो ओरिजिन सेम रहेगा, क्योंकि n का वैल्यू 0 है, 0 के साथ तुम जो भी मल्टीप्लाई करोगे वो तो 0 ही होगा, ठीक है। इसलिए तुम जो फैक्टर होगा अल्फा, ओके, अल्फा का वैल्यू जो मन में है तुम्हारा तुम ले सकते हो, लेकिन n का जो वैल्यू 0 होगा तो अल्फा इंटू 0 0 ही होगा। तो इसलिए तुम्हारा जो डेसिमेट के बाद, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन के बाद, टाइम शिफ्ट स्केलिंग के बाद जो नया जो सीक्वेंस होगा ना, उसी जगह में भी ओरिजिन का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। तो पहले वाला जो था वो दूसरा जो नया वाला सीक्वेंस आ गया, वो दोनों में से ओरिजिन का वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। इसलिए देखो यहाँ पे ओरिजिन क्या था, 4 था, न्यू जो सीक्वेंस है स्केलिंग के बाद उसी जगह में भी 4 ही है, ठीक है। नाउ ये जो न्यू जो सीक्वेंस है, x1 1 का वैल्यू क्या है, देखो x1 1 का वैल्यू क्या है, 6 है, इसलिए देखो x1 1 का वैल्यू 6 है। x1 2 का वैल्यू क्या है, 0 है, so x1 2 का वैल्यू 0, x1 3 का वैल्यू भी 0 है। नाउ गो टू द लेफ्ट साइड, x1 -1 का वैल्यू क्या है बाबू, x1 -1 का वैल्यू 2 है, तो इसे देखो x1 -1 का वैल्यू 2 है, और x1 -2 का वैल्यू 0 है, तो x1 -2 का वैल्यू 0 है, तो x1 -2 का वैल्यू जब 0 हो गया, तो x1 -3 की वैल्यू भी 0 होगा, तो ये वाला हो गया, इसलिए मैंने जो डॉट बोलो फिर से समझाइए ना सर, ये हमको समझ में नहीं आया। अच्छा सर, एक बात, हेलो सर, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ xn इक्वल टू जो भी है ब्रैकेट में, तो ओरिजिन का वैल्यू उसमें गिवन रहेगा हम लोग को, कि हम लोग को अपने से बताना पड़ेगा? हाँ, ओरिजिन का वैल्यू गिवन रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। जब नहीं होगा ना, इसीलिए पूछ रहे मान लो ये एरो नहीं है, तो तुम क्या करोगे, जी सर, एकदम जो स्टार्टिंग है वो तुम्हारा ओरिजिन होगा,
बाय डिफॉल्ट। ओके सर। मान लो यहाँ पे एरो नहीं है तो तुम क्या करोगे, तो पहला जो स्टार्टिंग जो नंबर होगा वही तुम्हारा, तो उसको एज अ कंसीडर्ड जीरो कर लेंगे ना सर? यस, एन का वैल्यू वो ठीक। जीरो होगा। ओके। और जो देखो मैंने और एक बात बता रहा हूँ, जी तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा तुम एक्स ऑफ अल्फा एन निकाल रही हो, तुम्हारा क्या गिवन एक्सप्रेशन क्या है, एक्स ऑफ एन है। फिर तुम देख रही हो एन 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 जो मल्टीप्लाइड विथ सम फैक्टर्स, देन जो नया जो सीक्वेंस होता है उसका क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या हुआ और क्या रिलेशन है। पहला जो सीक्वेंस था ओरिजिनल, उसके साथ जो चेंज होके जो एक सीक्वेंस हुआ, वो दोनों में से क्या रिलेशन है, दैट विल गोइंग टू फाइंड आउट। ठीक है, तो इसलिए क्या था तुम्हारा एक्स ऑफ टू एन था, मैंने क्या बोला, जो एक्स एन ये है, तो अल्फा अल्फा का वैल्यू मैंने क्या क्या ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया। तो नया जो सीक्वेंस है एक्स वन ऑफ एन, वो क्या हो गया, एक्स ऑफ टू एन हो गया। लड़की समझ गई ना? तो एन का वैल्यू Yes, sir. तुम्हारा क्या है, एन का वैल्यू तो जीरो है, एन का वैल्यू जीरो है, एन का वैल्यू 1 है, एन का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू 3 है। तो ये राइट साइड में हम लोग एन का वैल्यू जीरो से शुरू करके 0 1 2 3 हम फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट साइड में भी -1 -2 -3 एन का वैल्यू चेंज करके हम लोग x1 n जो है उसका वैल्यू हम लोग ढूंढेंगे। तो इसलिए x1 n ये नया एक सीक्वेंस है, पहले क्या था x ऑफ n था। नाउ व्हाट वी डिड हियर, n is multiplied with 2, that means स्केलिंग फैक्टर यहाँ पे 2 है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द राइट साइड, n का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो 2 into 0 x of 0 हो गया, तो x of 0 का वैल्यू 4 है। Now take the value of n is equal to 1. So when the value of n is 1, so x of n क्या हो जाएगा, x of twice n, x of 2 हो जाएगा, and x of 2 is 6. Now n का वैल्यू तुम क्या लोगे, 0 1 तो ले लिया। Now n का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, समझ गई ना? n का वैल्यू 2 हो गया। तो when the value, Yes, sir. हाँ n का वैल्यू जब 2 हो जाएगा तो x of twice n क्या होगा, बोलो, x of 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 4. यस। तो 4 का Yes, sir. वैल्यू है कि इधर नहीं है बाबू, देखो ये 1 का वैल्यू, 2 का वैल्यू, 3 का वैल्यू, x ऑफ 3 का वैल्यू 7, x ऑफ 4 नहीं है। जो नहीं है इसलिए वो 0 लिखा जाएगा, जो नहीं है दैट मींस 2000 जीरोस। तो राइट साइड खत्म हो गया, x4 में तुम्हारा 0 हो गया, so x5 भी और 6 भी। तो ये देखो ये राइट साइड में क्या होगा, 2n फैक्टर है तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, x ऑफ 6, x ऑफ 8, x ऑफ 10, x ऑफ 12 इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये ट्वाइस है इवन नंबर आ जाएगा। तो x ऑफ 4 में जब 0 चला आएगा तो मान लो वो जो नेक्स्ट वैल्यू होगा x ऑफ 6 और x ऑफ 8 जो भी होगा वो तुम्हारा 0 ही होगा। सो डोंट टेक द राइट साइड वैल्यू अगेन, नाउ मूव टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू इधर -1 है, तो n का वैल्यू जब -1 होगा, x ऑफ ट्वाइस n का वैल्यू क्या होगा, बोलो, x ऑफ ट्वाइस n का वैल्यू क्या होगा लड़की, बोलो, -1. -2 हो जाएगा। n का वैल्यू जब Sir, the -1 -2. -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसलिए 2 है, 2 sir. 2 हो गया। नाउ n का वैल्यू जब -2 होगा, n का वैल्यू जब -2 हो जाएगा, तो x ऑफ ट्वाइस n क्या हो जाएगा, x ऑफ -4 हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा x ऑफ -4 इधर नहीं है, कुछ भी नहीं है वैल्यू, तो इसलिए वो 0 हो जाएगा। अच्छा. इसलिए जो नया Thank जो you, sir. सीक्वेंस है x10 x12, नाउ दैट इज द सीक्वेंस नाउ आफ्टर स्केलिंग। सो x10 4 है, x11 6 है, तो देखो x10 4 है, x11 6 है, ऑल अदर वैल्यू 0 है। लेफ्ट में क्या है, x ऑफ -1 का वैल्यू 2 है और बाकी सारे का वैल्यू सब 0 है। इसलिए तुम्हारा जो नया सीक्वेंस है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, वी आर गेटिंग ऑल आर 0 हियर, 0 0 0 2 4 6 0 0 0। तो 0 का वैल्यू हटा दो यहाँ पे, तो तुम्हारा नया जो सीक्वेंस है क्या हो गया, 2 4 6 2 4 6, लेकिन तुम्हारा ओरिजिन अनचेंज है। तो पहले वाला क्या था, देखो ध्यान से देखिए, xn का वैल्यू ओरिजिनल ये था। नाउ अल्फा मल्टीप्लाई करने के बाद, दो मल्टीप्लाई करने के बाद ये सीक्वेंस तुम्हारा 2 4 6 हो गया। ठीक है, 2 4 Yes, 6 sir. हो गया। तो मतलब क्या क्या रिलेशन है xn और x1n में, क्या रिलेशन है, डिड यू गेट एनी रिलेशन? देखो यहाँ पे क्या है, मैं बोल रहा हूँ, तुम कितने मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 2 का 2 -1 2 -1 क्या है, 1 है। ठीक है, तुम जितने मल्टीप्लाई कर रहे थे उसके साथ 1 माइनस करो,
यहाँ पे हम लोग वी हैव मल्टीप्लाइड विथ 2 फैक्टर, सो 2 माइनस 1 क्या है 1 होगा। तो देखो सो 4 के बाद ओरिजिन के बाद एक नंबर को छोड़ के तुम लो, तो 4 इसके बाद 5 छोड़ के 6 लो, 6 आ गया। 6 होने के बाद 7 छोड़ के तुम क्या लोगे 0 लोगे, तो यहाँ पे 0 लेने का कोई मतलब नहीं होगा। सिमिलरली कम टू द लेफ्ट साइड, ये 3 छोड़ के मैंने बोला n माइनस 1 छोड़ के और अल्फा माइनस 1 छोड़ के, तो 2 माइनस 1 दैट मींस 1 छोड़ के, तो 4 था 1 घर छोड़ के 3 घर छोड़ के 3 को छोड़ के क्या लोगे 2 लोगे, तो 2 वैल्यू हो गया करेक्ट ना। 1 घर छोड़ के 1 छोड़ के तुम क्या लोगे 0 होगा, 0 लिखने में कोई मैंने कोई जरूरत नहीं है, इसलिए 2 4 6 हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे 8 होता और यहाँ पे 0 होता और माइनस सपोज माइनस 1 होता, तो क्या होता 4 के बाद 2 के बाद माइनस 1 होता। इधर भी 4 होने से आई के बाद 6 होता, 6 होने के बाद 7 को छोड़ना पड़ता है ना। सपोज देयर आर 8, सो 8 हो जाता राइट साइड में। इसलिए मैंने बोला नया जो सीक्वेंस होगा वो तुम एक घर छोड़ के ओरिजिन के बाद एक घर छोड़ के तुमको लेना है नंबर, ठीक है, सीक्वेंस लेना है। तो ये जो हो रहा है इसको डेसिमेट कहता है ना। बोलो डेसिमेशन का मतलब तुम समझ गए कि नहीं। 2 4 समझ 6 गए सर। हाँ, और ये जो नंबर है ये जो सीक्वेंस है दोनों में से क्या रिलेशन है मैं बोल दिया। नाउ सपोज यू हैव मल्टीप्लाइड विथ 3 वैल्यू 3n, तो कब तुम्हारा डेसिमेट कितना नंबर होगा, एनीवन प्लीज टेल मी। मान लो 2 के जगह में तुम 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3n कर रहे हो सर, तो 2 के टू नंबर छोड़ करके के चलना पड़ेगा सर। हाँ, तब क्या Yes, होगा 4 के बाद 7 होगा, ठीक है, 4 के बाद 7 होगा और इधर इधर 4 के बाद 1 होगा, दैट मींस 1 4 7 होगा करेक्ट। नया जो सीक्वेंस यस होगा ना 1 4 7 होगा। सो तुमको करना भी कोई जरूरत नहीं है। If you understood the condition, then you need not to calculate all these things. So that is the procedure, and that is all about your decimation in time. Now we'll go to interpolation method. तो interpolation method में क्या है, मैं बोल दिया अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 होगा। तो जब अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो तुम मान लो, देखो यहाँ पे मैं क्या कर दिया, एक्सटेंड तुम्हारा सेम है 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ पे अल्फा के वैल्यू 1/2 कर दिया। सो n इज डिवाइडेड बाय 2 है कि नहीं, n इज डिवाइडेड बाय 2। नाउ लेट अस स्टार्ट, प्लीज लिसन केयरफुली। तो n का वैल्यू पहले क्या होगा बोलो तुम लोग, एनीवन बोलो, 0 होगा पहले, तो 0/2 हाँ, तो x वैल्यू 0 हो गया। सो x1 0 0 दैट मींस 4। मैंने बोला ना ओरिजिन तुम्हारा चेंज नहीं होगा, ठीक है, ओरिजिन सब समय तुम्हारा एनी टाइम तुम्हारा वो सेम ही होगा। तो x0 हो गया 4। नाउ n का वैल्यू क्या होगा बाबू, n का वैल्यू 1 होगा कि नहीं, हाँ, n का वैल्यू 0 हो गया। नाउ sir. n का वैल्यू 1 होगा, सो x ऑफ 1/2 कितना होगा, x का फैक्टर x.5। सो x.5 तुम्हारा है क्या, देखो यहाँ पे जो तुम्हारा सीक्वेंस बाबू तुम मान लो ये n ऑल टाइम इंटीजर है। मैं कभी भी तुमको बोला नहीं जे n का वैल्यू फ्रैक्शन होगा, मैं कभी नहीं बोला। नो सर, यहाँ पे वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है, डिस्क्रीट सिस्टम होने के कारण सर ये नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, वेरी गुड फ्रैक्शन, यस सर, यस यस, कंटीन्यूअस होता तो हो सकता था। तो इसलिए x ऑफ 0.5 0 हो गया। सिमिलरली n का वैल्यू जब 2 होगा, n का वैल्यू जब 2 होगा 2/2 x ऑफ 1 हो गया, तो 5 हो गया। x का वैल्यू जब n का वैल्यू जब 3 होगा सो 1 5 होगा, तो इसलिए नहीं होगा। तो तुम कब ये वैल्यू मिल रहा है तुमको, जब n का वैल्यू इवन है कि नहीं, 2 4 6, ठीक है। तो n का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, 4 का वैल्यू 4/2 क्या होगा, 2 हो गया। सो x ऑफ 2 हो गया सर। हाँ, x ऑफ 2 इधर क्या है 1 2 x का 6 हो गया। नाउ x n का वैल्यू 5 होगा तो क्या होगा 5/2, 5/2 हाउ मच 2.5 2.5 सर। yes, so x of 2.5 don't have any values 0,
नाउ No, x sir. n का वैल्यू कितना लोगे 6 लोगे तो 6/2 हाउ मच 3 सो x of 3 क्या है 7 है और both go don't go beyond that because after that we don't have any values that will come to 0 okay so that's why you don't move further now come to the left side n का वैल्यू क्या है वो -1 है तो 100 -1 जब होगा तो ये क्या हो जाएगा -0.5 हो जाएगा सो -0.5 का कोई वैल्यू नहीं है ये फ्रैक्शन है नाउ n का वैल्यू जब -2 होगा n का वैल्यू जब -2 होगा तो -2/2 -1 हो जाएगा सो 100 -1 कितना है 3 है सो इन दैट वे यू टेक द वैल्यूज तो अल्टीमेटली क्या हुआ n का वैल्यू जब n का वैल्यू जब -6 होगा सो -6/3 sorry -6/2 when the n का वैल्यू -6 so -6/2 दैट इज होगा -3 सो 100 -3 क्या होगा देखो 0 1 0 -1 -2 -3 so 100 -3 how much 1 so 1 after that you don't go because उसके बाद तुम्हारा 0 हो जाएगा तो now you got the values x1 0 x1 1 x1 2 x1 3 x1 4 x1 5 x1 6 and x1 of -1 x1 of -2 x1 of -3 x1 of -4 x1 of -6 x1 of -5 and x1 of -6 so that means 0 से इधर 6 +6 तक 0 से -6 तक so -6 से +6 तक इंक्लूडिंग 0 तुम्हारा नाउ सीक्वेंस है करेक्ट तो ये देखो -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 सो -6 से +6 तक तुम्हारा नया सीक्वेंस मिल गया नाउ ये तो मिल गया मैथमेटिकली नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस जो नया जो सीक्वेंस है वो पहले वाला जो था ये तुमको देखना है तो ये देखो 4 है यहाँ पे 4 है दैट इज नो चेंज देयर इज नो चेंज ओरिजिन में कोई फर्क नहीं है नाउ देखो लेफ्ट में क्या है 5 है यहाँ पे देखो कितना 0 है सिंगल 0 4 के बाद 0 है देन 5 है उसके बाद फिर 0 है देन 6 है उसके बाद फिर 0 है लेफ्ट में देखो 4 के बाद 0 है उसके बाद जो ओरिजिनल था वैल्यू था 3 है उसके बाद 0 है उसके बाद जो ओरिजिनल वैल्यू 2 है वो मिल गया उसके बाद भी 0 है ना फिर जो तुम्हारा ओरिजिनल वैल्यू था पहला सीक्वेंस में वो मिल गया तो क्या हुआ बीच में 0 आ गया हाउ मच 0 कम्स सिंगल 0 कम्स ठीक है सिंगल 0 कम्स अल्फा का वैल्यू कितना था यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू अल्फा यहाँ 2 था ठीक है तो 2 - 1 इसलिए 1 हो गया ठीक है 1 हो गया तो इसलिए दो नंबर का बीच में कितना 0 आएगा सिंगल 0 आएगा ना मान लो सिंगल 0 मान लो यहाँ पे तुम एक n/3 कर रहे हो n/3 कर रहे हो सो n/3 होगा तो यहाँ पे कितना 0 आ जाएगा 4 और 5 बीच में और 5 6 बीच में सर यस सर 2 0 आ जाएगा ठीक है जब तुम 3 से डिवाइड करोगे ये नंबर को तो 3 - 1 हाउ मच 2 तो ये बीच में 2 0 आ जाएगा दैट इज 4 005 006 007 लेफ्ट में भी होगा 4 003 002 001 so some zero padding is there some amount 0 is padded here and that is depend upon what is the factor that you dividing or multiplying so interpolation में you have to think how much value you are taking and that value by what value you are dividing the time यहाँ पे तुम लोग how much value चूज कर रहे थे 2 वैल्यू चूज कर रहे थे so x is divided by 2 इसलिए 2 - 1 सिंगल 0 बीच में आ गया now you try it at your home please and test what I am telling you now जब तुम 3 से डिवाइड करोगे n/3 तो तुम्हारा ये जो दो नंबर होगा इस बीच में 2 0 आ जाएगा 2 0 आ जाएगा 4 005 006 007 ये आ जाएगा ठीक है तो ये जब होगा ठीक है
तो मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया टू इंटरपोलेट x ऑफ n बाय अल्फा, अल्फा माइनस 1 zeros will be appended between each two values of xn. I have written very clearly, जो अंधा है वो भी समझ जाएगा. So alpha minus 1, if alpha का वैल्यू 3 होगा, so 3 minus 1 that is 2 zeros will be appended between each two values of xn. xn में जो तो ये तो वैल्यू है 4 है 5 है, 4 5 में कितना जीरो आ जाएगा? जब अल्फा का वैल्यू 3 हो जाएगा 2 जीरो आ जाएगा. 5 6 में कितना जीरो आ जाएगा? 2 जीरो आ जाएगा. 6 7 में कितना जीरो आ जाएगा? 2 जीरो आ जाएगा. तो मान लो n is divided by 4. n is divided by 4. How much zero will be appended between any two number? 3 0. 3 zero will come. So between any two number 4 and 5 there should have three values of 0. 5 6 में 3 0 आ जाएगा. So 6 7 में 0 आ जाएगा. जब ये होगा that is for interpolation of the sequence. So that is the case. Okay, that is the case. You can test it by your own at home. So now मैं one example मैंने दे दिया. You test it by your by your own. घर में तुम ये प्रैक्टिस करो. ये प्रॉब्लम क्या था? यहाँ पे देखो ट्वाइस n by 3 कर दिया. दैट मीन्स डेसिमेशन भी है, इंटरपोलेशन भी है एक साथ में. प्लीज लिसन केयरफुली. ट्वाइस n by 3 इसका मतलब क्या है? तुम डेसिमेट कर रहे हो, उसके बाद जो सीक्वेंस मिलेगा वो तुम इंटरपोलेट कर रहे हो. ये भी तुम कर सकते हो. somebody you can try in that way. पहले तुम इंटरपोलेट करो, उसके बाद तुम डेसिमेट करो. ठीक है? पहले some people have tried, some of the students have tried पहले decimate, उसके बाद वो interpolate कर रहे थे. some group of the student tried first interpolation then go for decimation. but last में देखा जाएगा वो दो ग्रुप का वो जो आंसर होगा वो बोथ आर सेम होगा. तो व्हाट इज द कंक्लूजन? जो तुम्हारा मन में आएगा वो तुम करो. Not necessarily you have to make first interpolate then you go for decimate. Not necessarily. You may go for first decimate then next you go for interpolation also. So in that case you will get same result. इसलिए मैंने यहाँ पे दो लाइन दिखाया है, दो पैरेलल लाइन, बट आंसर्स आर सेम. एक्शन है तो पहले तुम डेसिमेट किए हैं बाय 2 देन इंटरपोलेट बाय 3, जो आंसर मिलेगा. इधर तुम क्या कर रहे थे? देखो पहले डेसिमेट किए थे, यहाँ पे तुम क्या किए? इंटरपोलेट किए हैं बाय 3, देन उसके बाद तुम डेसिमेट किए हैं. आंसर जो होगा वो सेम होगा. I have taken one example. It's your choice. You please try it at your home, and if you have any doubt, then we'll discuss in the next class. Today I am not explaining all these things because we have discussed a lot. Hope you will understand and you will get the result. I have taken one example. I have given the answer. You just go through it. Okay. तो देखो आंसर तुम्हारा सेम हो गया. 5008 इधर भी 5008. ठीक है? तो यहाँ पे क्या किए थे? पहले हम लोग ट्वाइस n किए हैं, दैट मींस डेसिमेट किए हैं, उसके बाद ट्वाइस n by 3 किए हैं, दैट मींस देन वी हैव टेकन द इंटरपोलेशन मेथड. यहाँ पे क्या किए थे? देखो पहले हम लोग इंटरपोलेट किए हैं, n by 3 किए हैं, उसके बाद n by 3 को ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, दैट मींस डेसिमेट किए हैं. बट बोथ द केसेस वी आर गेटिंग द सेम आंसर. सो both the lines are true, both parallel lines are correct. So you can choose any one. So that is all about your interpolation and the decimation. और ये जो है बहुत कुछ है, मैंने कर दिया, तुम देखो घर में. सबको मैं बोल रहा हूँ, ये नोट में दे दूंगा, ध्यान से देखो ये, क्योंकि डिस्क्रीट के लिए हम लोग बहुत सारे बात किए हैं. सो घर में ये करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं लास्ट में प्लीज एवरीबॉडी गो थ्रू, बहुत इंफॉर्मेटिव है. Please go through everyone, and if you found any doubt, you can ask me through telephone also. ये भी कुछ फॉर्मूला मैंने दिया है, ये दिमाग में रखना है for going for some solution of numerical problems. Some important formulas है, result है, ये तुमको दिमाग में रखना है. So you go through all these things, just
मैंने डिस्क्रीट टाइम के लिए वो पीरियोडिक लिए मैं एक दो बात बोलूंगा। कंटीन्यूअस टाइम में हम लोग किए थे एक्स ऑफ टी प्लस कैप्स टी, दैट वाज एक्स ऑफ टी। कैप्स टी था तुम्हारा पीरियड। यहाँ पे भी एक्स ऑफ एन तुम्हारा सीक्वेंस है, तो हाउ टू गेट द सीक्वेंस इज पीरियोडिक और नॉट, दैट इज द फॉर्मूला एक्स ऑफ एन प्लस माइनस एन। दैट मींस तुम डिले भी कर सकते हो, तुम एडवांस भी ले सकते हो। सो एक्स ऑफ एन प्लस एन और एक्स ऑफ एन माइनस एन तुम कर सकते हो, दोनों में जब सेम होगा दैट मींस दैट इज द पीरियोडिक, दैट इज द कंडीशन। नाउ we have taken the function e to the power j omega 0 n, that is the original signal xt। तो नाउ लेफ्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, n का जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, n of n plus n, n is replaced by n plus caps n। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या हो गया, e to the power omega 0 द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, n जगह में क्या हो जाएगा, n plus caps n। सो ये बोथ आर इक्वल होगा एज पर द कंडीशन, एज पर द कंडीशन बोथ आर इक्वल। नाउ लेफ्ट में क्या होगा, e to the power j omega 0 n into e to the power j omega 0 caps n, that is the equation। नाउ देखो बोथ आर इक्वल है, ये है, so e to the power j omega 0 n is equal to 1 हो गया, e to the power j omega 0 is equal to n, सॉरी 1। ये जो 1 होगा तुम क्या लिख सकते हो, e to the power j twice pi m। प्लीज लिसन केयरफुली, e to the power j twice pi m, m is the, what is the value of m, please tell me what is the value of m here, whether it is integer or fraction। ये 1 हो जाएगा सर इंटीजर सर, इंटीजर होगा। ट्वाइस पाई का वैल्यू जब 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, ठीक है, और 8 पाई होगा, तो कॉस और साइन का वैल्यू 0 हो, सॉरी 1 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू 1 ही होगा। इसलिए यू कैन राइट e to the power j twice pi into m, always giving you high value, 1 value। So that means ये क्या हो जाएगा, what is the relation between these two, omega 0 n is equal to twice pi m। So from this equation we can write easily omega 0 n, ये पावर सेम हो जाएगा, जब वैल्यू समान है तो पावर भी समान है। So omega 0 n is equal to twice pi into m। So what is the value of n, n is your time period and that is equal to twice pi by omega 0 into m। So that is the period, that is the period, okay। So here m, देखो मैं लिख दिया, here m, small m is the smallest integer, okay। It should be smallest integer which makes n an integer, that makes n is integer। तो m का smallest integer value जो कैप्स n को पीरियड को इंटीजर बना रहा है। So in that way you have to choose the value of m। Take one example here, take one example here, x of n 5 into sin twice pi by m into m। तो that is sin omega 0 n, तो omega 0 वैल्यू क्या है, omega 0 is equal to twice pi by m, twice pi by m। So fundamental frequency you got twice pi by n। So now देखो omega 0 में पाई फैक्टर मल्टीप्लाइड है, इसलिए सिग्नल पीरियोडिक होगा। प्लीज लिसन केयरफुली, जब भी तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड, सम फैक्टर मल्टीप्लाइड विद पाई, पाई फैक्टर होगा वहां पे, तो वो कंटीन्यूअस होगा। पाई नहीं रहेगा तो ये एपिरियोडिक होगा। तो पाई जब मल्टीप्लाइड होगा वो पीरियोडिक होगा, इसलिए ये पाई मल्टीप्लाइड है तो ये सिग्नल पीरियोडिक है। एंड यू पीपल नो दैट साइन फैक्टर इज ए पीरियोडिक सिग्नल। तो ओमेगा 0 मिल गया, तो n का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस पाई बाय ओमेगा 0, ट्वाइस पाई बाय ओमेगा 0 इनटू m। तो ट्वाइस पाई बाय ओमेगा 0 वैल्यू क्या है, ट्वाइस पाई बाय m, m ऊपर चला जाएगा, ट्वाइस पाई कैंसिल आउट, 5m हो गया।